हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर? द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन एन एडियाबैटिक कंबशन ऑफ फ्यूल without applying any shaft work is defined as the adiabatic flame temperature. Basically, in a combustion process, the heat produced during the exothermic chemical reaction is released to their product and temperature of the product is raised. There is no possibility for the dissipation of heat to the surrounding and the process will be considered as adiabatic, and there is no heat loss to the surrounding. As a result, the temperature of the product is suddenly increased and its product flame product flame temperature also increase. This will heat up the product gases in a flame region and the temperature rise will be maximum. The highest temperature is known as adiabatic flame temperature. ओके, इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें कि अगर कोई रिएक्टिंग सिस्टम में कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हीट लॉस नहीं हो रही है, जैसे कि एडियाबैटिक का मतलब आपको पता है, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो. इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस देन फ्लेम टेम्परेचर विल बी हाईएस्ट. फ्लेम टेम्परेचर जो भी जनरेट होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट होगा. किसी भी तरह से कोई भी हीट बाहर की तरफ नहीं जाएगी. उस फ्लेम का नाम क्या होता है? एडियाबैटिक. उस फ्लेम के टेम्परेचर का नाम क्या है? एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर. Okay, and the temperature rise basically depends upon the amount of excess air used or the air fuel ratio. Okay, the flame temperature has the highest value for using the pure oxygen. Okay, is adiabatic flame temperature highest कब होगा? When we are using the pure oxygen. Okay, and it is decreased by using the air. So the exact stoichiometric air is to be supplied for the better result. With a too large amount of excess air, the flame temperature will be reduced. Simple है कि if you are supplying excess air, if you are supplying excess fuel, then definitely the air fuel ratio will not proper and the flame temperature will reduce. अगर आप एयर फ्यूल रेशियो प्रॉपर नहीं सप्लाई कर रहे हैं, स्टेक्यूमेट्रिक से कम या ज्यादा रख रहे हैं, तो जो फ्लेम जनरेट होगी उसका टेम्परेचर एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर से क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? कम होगा. Okay, when the heat lost to the surrounding or diluted by the inert gases, there is an incomplete combustion. So the temperature of the product will be less, and the flame temperature is determined from the energy balance of the reaction at equilibrium condition. Okay, that's why we are further classifying the adiabatic flame temperature into two categories. One is constant pressure adiabatic flame temperature, and other one is constant volume adiabatic flame temperature. Okay, constant pressure adiabatic flame temperature and constant volume adiabatic flame temperature. Constant pressure adiabatic flame temperature and constant volume adiabatic flame temperature. सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर. ओके, हम इसमें एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाते हैं. H is equals to U plus PV. If we differentiate it, delta H is equals to delta U P delta V plus V delta P. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मींस डेल्टा P इज इक्वल्स टू जीरो. इसको हम क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं. ओके, डेल्टा H इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी प्लस P इनटू डेल्टा V. व्हाट इज दिस? दिस इज द डेल्टा Q फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q क्या होता है? U प्लस PV. और एडियाबैटिक फ्लेम की बात कर रहे हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है? जीरो. दैट्स व्हाई डेल्टा H इज इक्वल्स टू जीरो. डेल्टा H जीरो का मतलब क्या है? कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. ओके, एंथैल्पी रिएक्टेंट की और एंथैल्पी प्रोडक्ट की आपस में क्या रहेगी? बराबर. और ये एंथैल्पी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर आपको एंथैल्पी निकालना है
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन मोल ऑफ रिएक्टेंट प्लस ब्रैकेट H enthalpy of formation plus sensible enthalpy, okay, for reactant is equals to summation of enthalpy of product, enthalpy of formation of product plus enthalpy, sensible enthalpy of product. इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी इक्वेशंस हम बैलेंस करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो ये था कांस्टेंट प्रेशर एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर. अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं U प्लस PV. ये एंथैल्पी की इक्वेशन है, H इज इक्वल टू U प्लस PV. डेल्टा Q फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस P इंटू डेल्टा V. The process is constant volume process. That's why change in volume is equals to 0. Delta Q is equals to delta U. We can write delta Q is equals to delta U. Okay. H is equals to क्या है हमारे पास, U plus PV. H is equals to U plus PV को हम लिख सकते हैं MRT या NRT. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NRT. ओके, या MRT या NRT हम कैसे भी लिख सकते हैं. चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज माइनस एनआरटी. डेल्टा यू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू के, डेल्टा यू डेल्टा क्यू के बराबर है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एनआरटी. दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होगा, 0. डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0 हो गया. तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आई, डेल्टा एच माइनस एनआरटी. Okay, for reactant is equals to delta H minus nRT for product. ये हमारी इक्वेशन आई. ये इक्वेशन किसके लिए है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर है. ओके, तो आपको बात समझ में आई. एडियाबैटिक फ्लेम का मतलब क्या है, एडियाबैटिक फ्लेम का मतलब है कि रिएक्टिंग सिस्टम में जैसे कि आईसी इंजन में कंबशन चेंबर है, उसमें रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं. Okay, during the reaction, if we consider there is no heat transfer from the system, then the flame temperature will be highest. Okay, अगर हम ये कंसीडर करें कि सिस्टम से कोई भी हीट बाहर नहीं निकल रही है, तो जो फ्लेम जनरेट होगी उसका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा. किस कंडीशन में, अगर आप प्योर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ओके, और अगर आप ज्यादा लीन या ज्यादा रिच मिक्सचर नहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा इन एडियाबैटिक कंडीशन. अगर हम टू लीन और टू रिच मिक्सचर यूज करेंगे, तो जो फ्लेम टेम्परेचर जनरेट होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर. ओके, और कंबशन प्रॉपर नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा. तो ये सारी बातें हमने पढ़ी एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर के लिए. तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.